run a small primary school here in Almora. It's called the Learning Circle. My background has been in education throughout, and through studying education and through being in different facets of education, I finally realized that I love being around kids, and I love creating environments for kids in which they can feel safe and they can have lots of fun, but at the same time they can learn things also. तो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ पे बच्चे खूब मज़ा करें, सीखें और प्यार के बारे में जाने, केयर के बारे में जाने, अपनी दुनिया के बारे में जाने और एट द सेम टाइम अंदर भी रिफ्लेक्ट करें और बाहर भी रिफ्लेक्ट करें. तो ऐसा मेरे को एक स्पेस क्रिएट करना था, इसलिए मैं अपने होम टाउन वापस आई और मैंने एक स्कूल खोला. आपको स्टोरीज के बारे में क्या पता है? कहानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत अच्छा प्राउड फील कराती है और हम को कोई कहानी ऐसी होती है जो हमें हंसाती है, कोई कहानी ऐसी होती है जो हमें रुलाती है. ऐसी कई तरह की कहानी होती है, पर आई लाइक हैरी पॉटर स्टोरीज. उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून. आई डोंट नो. देहरादून. 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 सेम. सही बात है, सबने सही आंसर्स दिया. आप सब लोग बताएंगे आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? My favorite story is Harry Potter. It's hard to decide which would be my favorite story. I think any story written by R.K. Narayan would be my favorite. Yeah. My favorite story is written by Ruskin Bond. Which one? Which one? Ruskin Bond's all story I like. Doctor Strange. आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं यहाँ पे नई नई चीज़ें करने आया हूँ, एक्टिविटीज़ देखने आया हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत बुक्स पढ़ने आया हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें. मैं यहाँ पर अपने बैडमिंटन ग्रुप के साथ आया हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सारी बुक्स देखने आया हूँ, जैसे एक्टिविटीज़ करने आया एंड मैनी थिंग्स. मैं भी अपने ग्रुप के साथ आया हूँ, पर आया तो स्कूटी में था पिताजी के साथ, और यहाँ मैं बुक्स देखने ही आया था. बाहर बोर हो रहा था इसलिए आ गया. मैं यहाँ चीफ से मिलने आया हूँ, जो उत्तराखंड डिपार्टमेंट पुलिस के चीफ है, उनसे मिलने आया हूँ और बुक्स रीड करने और एक्टिविटीज. So let's read a story. ओके. Let's go. Okay. So the name of this story is Gajapati Kulapati. This is the name of this elephant. जितना बड़ा उसका साइज है उतना ही बड़ा उसका नेम भी है. Can you say Gajapati Kulapati? यस. गजापति कुलापति. 10 times. गजापति कुलापति. गजापति कुलापति. Okay. Gajapati Kulapati was a big elephant. Gajapati Kulapati was a gentle elephant. वो big था लेकिन वो gentle भी था. One night it rained and Gajapati Kulapati got wet. Gajapati Kulapati got a cold. Small noses like yours catch small colds, but big noses like Gajapati Kulapati catch. कितना बड़ा क्या जुकाम लगता है? छोटा जुकाम लगता है, बड़ा जुकाम? बड़ा जुकाम. छोटी नाक के लिए छोटा जुकाम और बड़ी नाक को क्या लगता है? बड़ा जुकाम. तो Gajapati Kulapati had a big nose and he caught a big cold. When the banana seller asked Gajapati Kulapati, "Do you want some bananas?" Yes. Gajapati Kulapati opened his mouth to say yes. पर उसने क्या बोला? Two. Whoosh! The bananas flew out of the banana seller's hands. जो bananas थे वो क्या हो गए? उड़ गए. Whoosh! और वो जाके postman के head पे गिर गए. Pachak! Pachak! They fell on the postman's head. The postman fell on a cow. Postman कहाँ गिर गया? Cow के ऊपर. The cow ran with her tail in the air. और कैसे वो दुम उठा के भागी?
एक और बार बोले Gajapati Kulapati felt very, very sad. Gajapati Kulapati didn't like to hurt his friends. उसको अच्छा नहीं लगता था अपने दोस्तों को hurt करना. Gajapati Kulapati opened his mouth to say sorry. He opened his mouth to say sorry, and what did he say? Achoo! The banana seller ran as fast as he could. The postman also ran as fast as he could. And the cow, she also ran as fast as she could. सब भाग गए वहां से. Gajapati Kulapati felt very sad. He did not like to hurt his friends. So Gajapati Kulapati hid behind a wall. वो एक दीवार के पीछे जाके छुप गया और वो पूरा दिन वहीं पे रहा. Everybody in the village now knew about Gajapati Kulapati's cold. जो गांव में सारे लोग हैं उन सबको गजापति कुलापति के जुकाम के बारे में पता चल गया. सब कह रहे गजापति कुलापति has a cold. That night a loud noise woke everyone up. एक जोर की आवाज आई और सब उठ गए. Was it a dog? No. और जोर से आवाज आई. Was it a lion? No. And louder. Was it a thunder? No. And louder. Was the sky falling down? No. No. It was the biggest sneeze anyone had heard. सबसे बड़ी चीख दुनिया की किसने मारी? गजापति कुलापति It was गजापति कुलापति. हाँ. Everyone shook their heads. सब सो रहे थे उन्होंने अपने सर हिलाए. बहुत ही जुकाम लगा और सब वापस से सो गए. फिर एक बूढ़ी और एक बहुत ही समझदार दादी वहाँ पे आई और दादी ने बोला लेट्स बिल्ड हिम अ हाउस. उनके लिए हमें घर बनाते हैं ताकि जब अगली बार रेन हो तो वो गीले ना हो. उससे सुरक्षा करेंगे. So the banana seller, milkman, tailor, flower seller, postman and the grandmother built a house for गजापति कुलापति. सबने मिलके उनके लिए इतना सुंदर सा घर बनाया. गजापति कुलापति was the happiest animal in the world, was the happiest elephant in the world. And from that day, उस दिन के बाद से लोगों ने ये तो सुना. अच्छू छोटी वाली चीख सुनाओ. आपकी अच्छू. आपकी कैसी चीख होती है? अच्छू. आपकी चीख कैसी होती है? तो उस दिन से लोगों ने अच्छू अच्छू तो सुना पर कभी भी अच्छू सुना या नहीं सुना? नहीं सुना. क्योंकि अब गजापति कुलापति के पास क्या था? एक घर. कैसी लगी स्टोरी? वाओ वंडरफुल. थैंक यू. वेलकम. ज़्यादातर अल्मोड़ा में जो कहानियाँ रोटेट करती थी जो दादा के टाइम से या उनसे पहले किसी ने उनको सुनाई होगी तो ज़्यादातर होती थी भूत प्रेत की कहानियाँ. यहाँ पे नौला सिस्टम बहुत ही कॉमन है विच इज़ अ नेचुरल वाटर स्प्रिंग सिस्टम. तो वो जगह को या तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पायस माना जाता है या फिर वहाँ पे भूत होता है. वहाँ पे एक पीपल का पेड़ होता है और वहाँ पे हमेशा भूत होता है और एक भूत का बच्चा होता है साथ में. फैमिली. ओके. यस भूत की फैमिली राइट. सो एक इस तरीके की कहानियाँ भूत प्रेत के बारे में, सर कटे हुए आदमी के बारे में, जंगल में कोई घूम रहा है उसके वो वाली कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती थी. और अगर हम थोड़ा सीरियस सेंस में देखें जो कहानियाँ कॉमन होती थी वो होती थी और जो लिखी भी जाती थी पहाड़ की लोगों की लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ कितनी कठिन है यहाँ पे. या फिर जो स्पेशली जो पहाड़ की औरत है वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जब वो काम पे लग जाती है और अपने घर का काम करके खेत का काम करके फिर घास काट के 6 बजे वापस आके खाना बनाती है. तो उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत कहानियाँ और गाने लिखे गए हैं. तो पहाड़ की लाइफ वैसे ही इतनी रोमांटिक है कि अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं भी हो रहा है या फिर कुछ क्लाइमैक्स नहीं भी है फिर भी वो कहानी बहुत ही इंटरेस्ट से लोग पढ़ते थे और लिखी भी जाती थी. आपने कभी भी भूत की कोई कहानी नहीं सुनी? मम्मी ने भी नहीं सुनाई? दोस्तों ने भी नहीं सुनाई? अभी आप भूत की आवाज निकाल सकते हो? यस. निकालो. मैं तो डर गया. इट्स अ फेस्टिवल फॉर 3 days जहाँ पे लोग आ रहे हैं और
बैठ रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, मस्ती में गाने सुन रहे हैं, वैसा वाला क्लासिकल म्यूज़िक जो अल्मोड़ा में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे ध्रुपद हो रहा है, शाम को ठुमरी हो रहा है, दास्तान गोई हो रहा है. सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय बिकॉज पीपल आर कमिंग टुगेदर and they're meeting their old friends and it's a place to hang out. It's a place to hang out for 3 days. अगर आप बुक्स के बारे में सीरियस नहीं भी हैं, आप बस आइए, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, कुछ स्टॉल्स में जाइए, कुछ इंटरेस्टिंग खाना खाइए. तो उस तरीके से तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय. एंड अगर हम देखें कि यूथ के लिए क्या कर रहा है ये, तो इट इज़ ब्रिंगिंग देम अ लॉट ऑफ परसेप्शन कि ये चीज़ें भी, हम इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं. हम कहानियाँ पढ़ने लिखने में, या हम म्यूज़िक सीखने में, या फिर हम परफॉर्मेंस में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं. और दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने कला को, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं. तो एक वो इंस्पिरेशन और एक होप भी जगाता है. एंड एक सेंस ऑफ कम्युनिटी तो है ही.